صدیوں پرانی بات ہے۔ دنیا کے ایک دور کونے میں برف پوش پہاڑوں اور گہری وادیوں کے درمیان ایک چھوٹا مگر دلکش شہر تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ دونوں کو رب نے ہر نعمت دی تھی، سونا، چاندی، مضبوط قلعہ، وفادار سپاہی، برستی ہوئی برکتیں اور ایسا دربار جہاں مظلوم کی آواز سنی جاتی۔ یہاں کے لوگ بہادر بھی تھے اور محنتی بھی، لیکن اس شہر کی سب سے بڑی پہچان وہ قلعہ تھا جو ایک بلند پہاڑی کے سر پر اس قلعے پر ایک نرم دل، انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا، بادشاہ خالد، جس کا نام زبان پر آتا تو لوگوں کے دل میں سکون اتر آتا۔ بادشاہ خالد کی ملکہ یاسمین صرف صورت سے خوبصورت نہیں تھی بلکہ اس کا دل بھی رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ مگر ان سب نعمتوں کے درمیان ایک کمی ان کے دل کو چپتی رہتی۔ ان کی صرف ایک سلطان تھی، شہزادہ دلاور، ہوشیار، بہادر اور ادب سے لبریز تھا۔ لیکن یاسمین کے دل میں اکثر خیال آتا، کاش ایک بیٹی بھی ہوتی۔ ایک رات جب آسمان بالکل صاف تھا اور تارے سیاہ چادر پر بکھرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، ایک رات ملکہ یاسمین قلعے کی چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن سینے میں جلتی تمنا اس سے تیز تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی گہرائی سے دعا کی، یا رب، اگر تیرے علم میں میرے لیے بیٹی ہے تو مجھے اپنی رحمت سے نواز، اور اگر نہیں تو میرے دل کی اس خواہش کو ہلکا کر دے تاکہ میں صرف تیرا شکر ادا کرنے والی بن کر رہ سکوں۔ دعا ابھی لفظوں میں تھی کہ اچانک آسمان سے ایک تیز ستارہ ٹوٹ کر قلعے کی چھت کی طرف آیا۔ یاسمین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ روشنی سیدھا چھت کے ایک کونے پر آ کر رک گئی۔ نہ شعلہ، نہ آگ، بس نارم سا چمکتا ہوا نور کا گولا۔ پھر وہ روشنی سمٹ کر ایک چھوٹے سے پتھر میں بدل گئی جو خود ایک ستارے کی شکل کا تھا۔ پتھر نہ گرم تھا نہ بھاری، اس سے نرم سی تپش اور ایسا نور نکل رہا تھا جو آنکھوں کو اس کے اندر ایک عجیب سا یقین جگ اٹھا، جیسے رب نے اندھیری رات میں اس کی دعا کا جراب ایک نشانی کی صورت میں بھیج دیا ہو۔ وہ پتھر اس نے اپنے کمرے میں لا کر ایک چھوٹی ڈبیا میں رکھا، صندوقچے کے اندر چھپا دیا۔ اس رات جب وہ سوئی تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک روشن باغ میں کھڑی تھی۔ ہر درخت کی شاخوں سے ستارے لٹک رہے تھے، ہوا میٹھے نور سے بھری تھی۔ ایک ستارہ اس کے قریب آیا، روشنی سے بھرپور، پھر دھیرے دھیرے ایک ننھی لڑکی کی صورت اختیار کر گیا۔ امی، میں آ رہی ہوں۔ صبح یاسمین نے اپنا خواب بادشاہ خالد کو سنایا۔ خواب کبھی دل کی آواز ہوتا ہے، کبھی رب کا اشارہ۔ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد حکیموں نے خوشی کی خبر دی۔ ملکہ یاسمین امید سے تھی۔ بازاروں میں میٹھا بٹا، مساجد میں شکرانے کی نمازیں اور لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی دعا۔ مہینوں کے بعد ایک چاند رات کو ملکہ یاسمین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ خالد نے اس کا نام ستارہ رکھا۔ پورا شہر اسے شہزادی ستارہ کے نام سے پکارنے لگا، اور اس طرح نور آباد میں نہ صرف برف، ستارے اور نور کا جشن تھا بلکہ دلوں میں انصاف۔ رات کو جب سب سو جاتے، اکثر دیکھا جاتا کہ وہ قلعے کی چھت پر بیٹھ کر تارے دیکھتی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتا، اسے تلوار بازی بھی سکھاتا، مگر ایسی احتیاط سے جس طرح کوئی نرم پھول کے پاس تیز دھار لے کر گزرتا ہو۔
रात को जब सितारा अपने माथे के निशान को छोकर सोच में डूब जाती, दिलावर उसके सर पर हाथ रखकर कहता, सितारा बढ़ती गई और उसके साथ किले में एक नई रोशनी भी बढ़ती गई। रात को जब सब सो जाते, अक्सर देखा जाता कि वो किले की छत पर बैठकर तारे देखती, जैसे उनसे छुपके छुपके बातें कर रही हों। रात को जब सितारा अपने माथे के निशान को छोकर सोच में डूब जाती, दिलावर उसके सर पर हाथ रखकर कहता, तुम्हारा सितारा तुम्हारी हिफाजत करेगा। नूराबाद के दरबार में एक पुराना वजीर था नफीस, जाहिर में बहुत अक्लमंद, मगर उसका दिल हस्त और ताकत की प्यास से काला हो चुका था। उसने पुरानी किताबों से जादू का कुछ इल्म सीख रखा था। एक रात वो किले के पुराने तहखाने में अपनी सियाह किताब देख रहा था कि उस पर एक पुराना राज खुला। जो नूर आसमान से जमीन पर आता है, अगर कोई उसे कैद कर ले तो लंबी जिंदगी, ताकत और लोगों के दिलों पर हुकूमत हासिल कर सकता है। सितारा अपनी साइलों के साथ किले के बाहर बस्ती में जाती, गरीब बच्चों के साथ खेलती, उन्हें रोटी, फल और खिलौने देती। लोग कहते, शहजादी हमारी सितारों वाली परी है। एक साल कहत पड़ गया, बारिश रुक गई, फसलें सूख गईं, दरिया कमजोर, बच्चों के चेहरे जर्द। एक रात सितारा किले की छत पर रोती हुई खड़ी थी। निशान तेज चमका, फिर उससे एक कतरा नूर उठा और आसमान की तरफ चला गया। बादल जमा होने लगे। नफीस ने यह मंजर देखा तो उसका यकीन और मजबूत हो गया। ये नूर जाया हो रहा है। जब बादशाह खालिद पड़ोसी सल्तनत के दौरे पर गया, नफीस ने मौका देखा और अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसने पुरानी राह पकड़ी और शहर के बाहर पुरानी झील तक पहुंचा, जहां आईना-ए हकीकत और उसकी हिफाजत एक परी करती है। झील शानत थी। नफीस ने किनारे पर खड़े होकर पुकारा, झील की परी, अगर तू मुझे आईना-ए हकीकत दे दे। पानी में लहरें उठीं, रोशनी की एक लकीर बनी और एक परी उभर कर सामने आई। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने बारे में सच देखने की हिम्मत रखते हैं। नफीस ने झूठी नरमी इख्तियार की। मैं भी तो यही चाहता हूं। परी ने उसकी आंखों में छुला अंधेरा देख लिया, मगर यह भी जानती थी कि कुछ इम्तिहाश वक्त ही लेता है। उसने पानी के तल्ले से आईना निकाला, उसे देकर सिर्फ इतना कहा, यह आईना झूठ को झूठ ही दिखाता है। नफीस ने आईना कुल्ले के तहखाने में छुलाया और वक्त का इंतजार करने लगा। एक दिन वो किले के बाग में आया, जहां सितारा फूलों के दरमियान दिलावर के साथ थी। दिलावर ने उसके माथे के निशान को देखकर कहा, तुम हमारी तकदीर का सितारा हो। सितारा हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी लगता है भाईजान कि मैं सबको खुशी देती हूँ। इसी दौरान नफीस उनके करीब आया। शहजादी, उसने अदब से झुककर कहा। वो उन्हें सिनवी राहदारियों से गुजरकर एक पुराने दरवाजे तक ले गया। अंदर बीच में आईना-ए हकीकत खामोश खड़ा था। शहजादी अकेली नहीं जाएगी, मैं साथ हूंगा। जरूर शहजादे, दो नूर एक साथ होंगे तो मंजर और भी खूबसूरत लगेगा। सितारा झांकने के लिए आगे बढ़ी। आईने में सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी के मंजर उभर आए। घबराकर उसने हाथ बढ़ाया, आईने को छूना। आईने से रोशनी की लहर निकलकर उसी को खींचने लगी। फिर एक और मंजर, सितारा का नूर गोले की सूरत में समटकर आईने के अंदर जा रहा है। नाफिस ने कादीम अल्फाज पढ़े, आईना तेवर में घुलकर गईब हो गया। सितारा,
दिलावर चेखा। जिस्म हल्का, आवाज दूर, दुनिया पीछे रहने लगी। दिलावर ने तलवार नफीस की गर्दन पर रखी। तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? वो जिंदा है, मगर अब वो ऐसी जगह है जहां से सिर्फ वो देख सकती है, दुनिया उसे नहीं। ऐ सितारों के रब, मुझे मेरी बहन तक रास्ता दिखा दे। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। मैं सीराफ हूं, सितारों का पैगाम्बर। मैं सेराफ हूं, सितारों का पैगाम्बर। तुम्हारी बहन का नूर हमारे आसमान के दरमियान लटका हुआ। इसे वापस लाना है तो तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे, इंसाफ, कुर्बानी और सच्चाई के। मैं रजामंद हूं। इताअत कौन? सैरफ के परों पर सवार होकर वो ऊपर उठा। पहली मंजिल एक सूखी वादी थी जहां लोग प्यास से तड़प रहे थे। दिलावर ने प्यासे बच्चों को देखा, सितारा को याद किया और कहा, पहले इन्हें इंसाफ दिलाना है। उसने लोग सेराफ ने कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत पर इंसाफ को तरजीह दी। पहला इम्तिहान तमाम हुआ। दूसरी मंजिल एक घना जंगल था जहाँ एक दरिंदा एक नस्से बच्चे पर झपटने वाला था। दिलावर ने सोचे बगैर बीच में कूदकर बच्चे को बचाया, खुद जख्मी हो गया। सिराफ ने नूर से उसके जख्मों को धोया। ये कुर्बानी का इम्तिहान था। उसने कहा, तुमने जान का खतरा मोल लिया मगर पीछे नहीं हटे। तीसरी मंजिल एक अजीब जंगल था जहाँ हर शाख पर झूठे मंजर लटक रहे थे। सितारा को जंजीरों में रोटी नफीस के साथ। ये सच्चाई का इम्तिहान है, सैरफ ने कहा। अगर तुम इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर गए तो अपनी बहन को खो दोगे। दिलावर ने आंखें बंद की। उसने सोचा, मेरी बहन जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकती, वो अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। उसने तस्वीर से निगाह हटाकर उन पर तलवार चलाई जो सितारा को गलत रूप में दिखा रही थी। तस्वीर टूटकर हवा में। अब तुम्हारी बहन तक रास्ता खुल गया है, सिराफ ने कहा। वो आसमान की तरफ ऊपर उड़ गया। रोशनी से बना एक महल नजर आया। बीच में नूर का गोला था, सितारा का कैद नूर। इसके गिर्द जादुई अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। ये बंदी नफीस के जादू और खून से बंधी है। सैरफ ने कहा, इसे उसके खून या उसकी सच्ची तौबा ही तोड़ सकती है। तुम्हें वापस जमीन पर जाकर उसका सामना करना होगा। वो किले की छत पर वापस आए। दिलावर ने सब कुछ बादशाह और मलका को सुनाया। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थे। सिपाही किले के कोने कोने में फैल गए। नफीस तहखाने के करीब अपनी किताब के साथ मिल गया। उसे घसीट कर दरबार में लाया गया। तूने मेरी बहन का नौर कैद किया। या तू अपने जुर्म का इकरार करके रब से तौबा कर, या फिर तेरा खून उस बंदी को तोड़ेगा। दिलावर घुटनों के बल गिर गया। मलका यास्मीन बेहोशी के करीब। किले में हंगामा। नफीस हंस पड़ा। मैं तौबा? मैंने जिंदगी भर दूसरों को चलाया है। काजी ने हुक्म सुनाया। जब नफीस का खून जमीन पर गिरा, दार आसमाल में कोई बंद गिरा ढेली हुई। इसी रात दिलावर फिर सिरफ के साथ आसमान की तरफ उठा। आसमानी महल में नूर का गोला लर्जने लगा, फिर धीरे धीरे इंसानी सूरत इख्तियार कर गया। हाथ, चेहरा, माथे का छोटा सितारा सब नुमाइश हो गए। एक चमक, फिर रोशनी नरम हुई। भाईजान, आपने फिर मुझे ढूंढ लिया। इस दफा सिर्फ मैं नहीं, उसने कहा। रब की रहमत, तुम्हारी नेकियां और सच ने मिलकर तुम्हें वापस ला रहा है। आसमान पर एक सितारा तेज चमका, फिर उससे रोशनी अलग होकर एक बाज की सूरत इख्तियार कर गई। वो नूर आबाद वापस आए। मलका यास्मीन ने बेटी को सीने से लगाया, सितारे वाले निशान को चूमती रही। आईने हकीकत परी ने वापस ले जाकर झील के तल्ले में छुपा दिया ताकि फिर कोई हसदजादा हाथ उसे ना छोड़ सके। बादशाह खालिद ने अपने दरबार को साफ किया ताकि किसी नफीस को
फिर कभी नूर पर साया डालने का मौका ना मिले। गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सितारा के आमाल से मुतासिर होकर। शहजादा दिलावर ने सीखा कि इंसाफ, कुर्बानी और सच के बगैर कोई तलवार, कोई तख्त, कोई जादू किसी को कामिल नहीं बना सकता। किले में जश्न हुआ, मगर इस दफा जश्न के साथ गहरी समाज भी थी। नौर सिर्फ देखने की चीज नहीं, जिम्मेदारी भी है। याद रखो, नूर हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करता है। अगर हम अपने दिल को साफ रखें, अपनी